نیوز میں کہیں گے خوشامدید، میں ہوں سعدیہ سامسن۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے عام خبر سے۔ بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23 دہشت گرد جانوں واصل کر دیے گئے۔ SPR کے مطابق آج نائب 11 اور 31 جنوری کی رات کلات میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ وطن کی 18 سپود بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوست نما دشمن کچھ بھی کر لیں، انہیں عظیم قوم اور مسلح افواج کے استقامت کے ہاتھوں شکست ہو گیا۔ آرمی چیف نے دوست نما دشمنوں کو وارننگ دے دی، کہا مادر وطن اور عوام کی دفاع کے لیے ہم ہر قیمت پر جواب دیں گے، جہاں بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا پیچھا کر کے انہیں انجام تک پہنچایا جائے گا۔ مسلح افواج قابل فخر قوم کے تعاون سے دوست نما دشمنوں کا خاتمہ کریں گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملک دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا۔ سپہ سالار نے بلوچستان کا دورہ کیا، FC کے شہید ہونے والے 18 جوانوں کے نماز جنازہ میں شرکت کی، زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ اس موقع پر آرمی چیف کو سیکیورٹی کی صورتحال پر جامع بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے عزم کو سراہا، دوست نما دشمن عناصر کو وارننگ بھی دی۔ واضح کیا کہ غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار بن کر دہشت گردی کو ہوا دینے والے دوغلے عناصر سے آگاہ ہیں۔ شکار کے لیے شکاری کے ساتھ اور بچاؤ کے لیے شکار کے ساتھ چلنے والے ہمارے لیے کوئی اجنبی نہیں۔ دوست نما دشمن کچھ بھی کر لیں، انہیں عظیم قوم اور مسلح افواج کی استقامت کے ہاتھوں شکست ہوگی۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ مادر وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ہم ہر قیمت پر جواب دیں گے، جہاں بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا پیچھا کر کے انہیں انجام تک پہنچایا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے قلات اور ہرنائی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کامیاب کارروائیوں کے دوران 23 دہشت گردوں کا قلقمہ کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو بہادری سے لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ماں دھرتی پر قربان 18 بیٹوں کی شہادت پر ان کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ PTI کے انکار کے باوجود ایاز صادق مذاکرات کی پٹری پر چڑھنے کے لیے پر امید ہے۔ ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹی برقرار رکھنے کا حکم دے دیا، جبکہ تحریک انصاف اور حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل کی جا چکی ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ابھی تک مذاکراتی کمیٹیوں کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ حکومت اور PTI کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی، تاہم PTI نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہ ہونے پر حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ بانی PTI کے لیے امریکہ سے ابھی تک کوئی فون کال نہیں آئی، جب آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ ہمارا امریکی حکومت سے بہت اچھا تعلق ہے، سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں حقائق نہیں ہوتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، بولے 8 فروری کے احتجاج پر PTI سے پہلے کی طرح درخواست کریں گے کہ ایسا نہ کریں، اگر وہ نہ مانے تو وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا۔ فون کال نہیں آئی، بہت جلد بڑے اچھے رزلٹ دیکھیں گے۔ پاکستانی گورنمنٹ کا US گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے۔ کچھ چیزیں صرف سوشل میڈیا کی ڈیمانڈ پہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں، تو آپ کو حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں۔ میرا تو پہلے بھی اسی طرح جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی، نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر نہ دبایا جائے۔ حکمران ہوش کے ناخن نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت اور آزادی اظہار رائے نہ ہو۔ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، بلوچستان میں حالات خراب ہیں، ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں، سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ پنجاب پولیس کچرے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ PTI کارکنان پر چڑھ دوڑتی ہے۔ امریکہ سے ایک بزنس مین کو لا کر دکھایا گیا ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ کار ہے۔ کو آپ گولی کے زور کے ساتھ، ڈنڈے کے زور کے ساتھ سپریس نہ کریں۔ لوگ ہوش کے ناخن لیں۔ اسلام آباد میں پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، انکلوسیونیس ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ کون سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے گا؟ وردی میں تو پنجاب پولیس کا یہ حال ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، باقی کو چھوڑیں، اور چڑھ دوڑتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر۔ ایک بزنس مین کو اٹھا کے لائیں، اس کو پورٹرے کرنے، جی بڑا بزنس مین آیا ہے یہاں پہ۔ بات کرتے کراچی کے حوالے سے بھی، میئر کراچی مرتضی وہاب نے MQM کو وفاق سے پیسے لانے کا مشورہ دے دیا ہے۔ وہ بولے کہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر رہ چکے ہیں، آئیے ساتھ بیٹھے شہر کی ترقی کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔
वज़ीर आज़म से भी कहता हूँ कि कराची की तरक्की के लिए ख़जाने का मुंह खोलें। इस्लामाबाद में बैठने वालों को कराची के लिए दिल वसी करना होगा। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी जवाब में बोले कि हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं। मेयर कराची आएँ और हमारा साथ दें। सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है। जो 40% मैसर था, इसका 90% भी चोरी कर लिया गया है। ये चाहते हैं कि कराची का एक एक बच्चा ना पढ़ सके। फारूक भाई से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, बयानबाजी से गुरेज करें। बदनसीबी ये है कि 50 साल से जिनके पास इस शहर का कभी मैंडेट नहीं रहा है, उनके पास इख्तियार 100% है। मैं उनका हाथ थामता हूँ, मेरे साथ चलें, 15 अरब रुपए ले आएं, तो इसको हम ट्रांसपेरेंटली जिस तरह फारूक भाई कहेंगे ना, उस तरह हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। 50 साल से कोटा सिस्टम लगा हुआ है। ये कोटा सिस्टम दही और शहरी की बुनियाद पे नहीं है, ये लिंग्विस्टिक और लिसानी बुनियादों पे लगाया गया था। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बार बार कहता हूँ, ये बता दें वो 15 अरब रुपए कहाँ से मिले। जागीरदाराना निज़ाम तो चलता ही जहालत पे है, नाइंसाफ़ी पे है, अदम मसावत पे है। उसको दूर हुए बगैर कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ये तो कब्जे की तैयारी है, कब्जा करने की कोशिश है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शो में कामयाबी हासिल की है। 2025 पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों का साल है। लंदन के पाकिस्तानी हाई कमीशन में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से एहसन इकबाल का खिताब। कहा, पाकिस्तान में वसाइल और टैलेंट की कोई कमी नहीं। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। Udan Pakistan initiative, which was launched by Prime Minister Shehbaz Sharif on 31st December 2024. So there is a huge gain that we need to make, and we are making, with restoration of stability and sanity in economic management of the country. Pakistan of 2025 is markedly different, and we have achieved great successes in many fields. What kind of people the Pakistanis are? So they will at least give you two answers, that they are very hardworking and they are very intelligent. At the same time, in industry, in agriculture, in many other areas, we have achieved many successes. First, having political stability, and then development has followed. 30 कराची ओपन स्कूल्स एंड कैडेट्स नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप सिंध यूथ क्लब कराची में मुनक्किद हुई है। सिंध चैंपियन से पहली बलूचिस्तान रेड दूसरी और सिंध हीरोज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स सिंध अब्दुल अलीम लाशारी ने कहा है कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियां खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद की जाती हैं। सिंध भर में स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए कोशिशां हैं। दुबई में सेहत, टेक्नोलॉजी और बिजनेस वेंचर्स आइडियाज पर मबनी पाकिस्तान हेल्थ टेक कॉन्फ्रेंस इंसानी ज़िंदगी से जुड़े 3 अहम शोबाजात का मिसाली इम्तिजाज देखने को मिला। हेल्थ केयर सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी के इश्तराक से सरमायाकारी और बैन अक़वामी शराकत दारी के दरवाजे खुल गए। दुबई से अंसर इकराम की रिपोर्ट देखिए। दुबई में पाकिस्तान हेल्थ टेक कॉन्फ्रेंस आलमी मयार की हेल्थ टेक कंपनियों, माहिरीन और सरमायाकारों का जमे गफीर नजर आया। इस इवेंट का इनेकाद MKM इवेंट्स के बानी काशिफ अहमद ने किया। मौके पर सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा, ये इवेंट मुल्की हेल्थ सेक्टर में जिद्दत और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए संगे मील साबित होगा। शब्बीर मर्चेटला, चेयरमैन PBC दुबई और डॉक्टर जावेद अकरम माहिर सेहत ने कहा, हेल्थ टेक इंडस्ट्री में कंपनी टू कंपनी नेटवर्किंग और कारोबारी मौके बढ़ाने का ये बेहतरीन मौका है। हमारा गोल ये होता है कि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, हमारे मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा है। ये अरब हेल्थ जो है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है हमारे सर्जिकल इंडस्ट्री वालों को, सर्जिकल मैन्युफैक्चरर्स को और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। बहुत सारे सेक्टर्स देखे गए और इन्वेस्टमेंट की बात हुई। UAE वहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे और पाकिस्तानी UAE में आके फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करे। ये इवेंट करवाने का मकसद पाकिस्तान की कंपनीज का UAE की कंपनीज और मिडिल ईस्ट के कंपनीज के साथ बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट है। कॉन्फ्रेंस में बड़ी कंपनियों के नुमाइंदगान, माहिरीन और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब का मकसद इलाज के जदीद तरीके, सरमायाकारी के मौके और पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के लिए नए ऑप्शंस की तलाश था। इस्लामाबाद में फूलों और गुलदस्तों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गजरे और गुलाब की कितनी कीमत बढ़ी है, बता रहे इस्लामाबाद से मोहम्मद आलिजा। वक्त हम इस्लामाबाद की एक पोश मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर मेरे कब में आप देख सकते हैं आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। फरवरी के महीने के आगाज़ से कबल ही फूलों की गुलदस्तों की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर एक शॉप ऑन कर, उन्हीं से जानते हैं कि
कितना इजाफा हुआ है? फरवरी का, जैसे जी आप जानते हैं कि फरवरी का आगाज़ हो चुका है। इसमें फरवरी के महीने में चूँकि आप जानते भी हैं कि एक इवेंट भी आता है, उस की निस्बत से ये जो फ्लावर्स हमारे हैं इसमें रोज़ेज़ में क्राइसेंथेमम है, लिलीज़ है या इंपोर्टेड रोज़ेज़ हैं, तो इनमें खतर खा इजाफा होता है। बिकॉज़ इसमें जो फ्लावर्स जो हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है और स्टोरेज इसकी शुरू हो जाती है। डिमांड इसलिए भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है फूलों की, क्योंकि अभी सर्दियां गुजर रही हैं, तो सर्दियों में फ्लावर्स की जो ग्रोविंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और फ्लावर शॉर्टेज भी होती है इसमें। इस वजह से भी इसके रेट थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन वो फरवरी की वजह से भी फरवरी की वजह से रेट्स में इजाफा हो गया है। जो गजरा 100 रुपये का था वो 150 का, और जो गुलदस्ता 1000 का था वो 1500 तक बढ़ गया है। तो जो फरवरी का आगाज़ होगा। और अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शिबे निजी स्कूल की जानिब से जैन फेस्ट 25 के उन्वान से मेला सजाया गया, जिसका मकसद बच्चों की सलाहियतों को निखारना और उनके एतमाद को बढ़ाना था। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। कराची के निजी स्कूल में सजा रंगारंग जैन फेस्ट 25। हेड ऑफ स्कूल शुएब सिद्दीकी का कहना था कि इवेंट बच्चों के एतमाद को बढ़ाने के लिए बेहतरीन काविश है। Our entire focus is कि हमें उनको एक ऐसे होलिस्टिक लाइफ स्किल्स देनी है जिनकी इफेक्टिवनेस सिर्फ आज नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी के लिए और इंशाल्लाह पुश्तों के लिए वो फिर हमारी नेशनल इफेक्टिवनेस को हेल्प करेगी। इस मौके पर डिपार्टमेंट हेड रिजा ने बताया कि तलबा ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए मुख्तलिफ किस्म की अशिया भी तैयार की हैं। यहाँ पे जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये हमारे बच्चों की पूरे 1-1.5 महीने की मेहनत है। हमारे पास 16 सोसाइटीज़ हैं, उन सब ने मिलकर बच्चों ने डिफरेंट टीम्स में अपने डिफरेंट आइडियाज़ एंड क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू यहाँ पे स्टॉल्स पुट अप करे हैं। फेस्टिवल में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के हवाले से अलग स्टॉल लगाया गया। जो एक्टिविटियाँ हो रही है ये एक मॉड्यूल है एक इवेंट का, इसको हम बुलाते हैं जेनेरियन लेगो लीग। ये एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, फर्स्ट लेगो लीग। हमने उसको जनरेशंस का वर्जन बनाया है और ये उसका एक मॉड्यूल है, इसको बुलाते हैं रोबोट गेम। इस मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट लेगो लीग एक मैट हमेशा हर साल रिलीज मैट करता है अपना, और हम उसको अपने बच्चों के हिसाब से मॉडिफाई करके डिजाइन करते हैं। फेस्टिवल में शरीक वालिदैन ने इवेंट को खूब सराहा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव व्हेन दे एक्चुअली स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड। जब उन पर रिस्पांसिबिलिटीज आएंगी, उन्हें पता होगा कि हमने उन्हें किस तरह हैंडल करना है। को मजीद निखारना था। कफील अहमद, बोल न्यूज, कराची। लाहौर में ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम विमेन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। पहले रोज़ मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद हुए। ढोलक पर गीत और कवाली नाइट में तहसीन, सकीना और दीगर ने खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। तफसीलात अफजाल अब्बासी की इस रिपोर्ट में। और में सजा 2 रोज़ा वुमेन फेस्टिवल, खवातीन की तफरीह के लिए मुख्तलिफ सेशंस का एहतमाम। इवेंट के पहले रोज खवातीन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे फेस्टिवल खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जरूरी होते हैं। I think we should encourage these kind of festivals that empower women. ऐसे इवेंट्स लोगों को जोड़ते हैं, लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। हमारा आजकल हर तरफ एक एग्रेशन और डिप्रेशन का माहौल है, तो उसमें ये खूबसूरत चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने हमें भी मौका दिया था कि एज ए वॉलंटियर हम इधर काम करें। हमें यहाँ पे काम करने के अलावा और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सेशन में ढोलक पर रिवायती गीतों पर खूबसूरत परफॉर्मेंस भी पेश की गई। मुख्तलिफ बैंड्स ने रक्स के जरिए हाजरीन को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। फेस्टिवल में मारूफ सूफी गुलकारा तहसीन, सकीना और दीगर ने कवालियों के जरिए समा बांधा। वुमेन फेस्टिवल के दूसरे रोज भी मालूमाती सेशन और म्यूजिकल परफॉर्मेंस का इनेकाद किया जाएगा। वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम्स खवातीन को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका फराहम करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। 9 मई GHQ हमला के इससे मुतालिक तस्वीर और पहुंचने वाले नुकसान के तखमीने की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। समाअत के दौरान इस्तिगासा के मज़ीद 2 गवाहान की शहादत का रिकॉर्ड भी पेश किया गया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। बानी PTI को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत को बताया गया कि GHQ गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 रुपये का नुकसान हुआ। केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी करते हुए जज अमजद अली शाह ने 8 फरवरी से कबल बुशरा बीबी को 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश और उन्हें अदालत के सामने पेश करने की हिदायत की। कराची पब्लिक स्कूल ने जिद्दत और इनफरादियत की मिसाल कायम कर दी है। बच्चों के लिए दिलचस्प इवेंट के इनेकाद से स्कूल जादुई दुनिया में तब्दील हो गया। तलबा ने फेरी टेल फेस्टिवल में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। साद शरीफ की रिपोर्ट।
बच्चों के लिए दिलचस्प इवेंट स्कूल जादुई दुनिया में तब्दील। अपनी पसंदीदा कहानियों के किरदारों का रूप धार कर परियों की कहानी को हकीकत में ले आए। इवेंट में दिलचस्प कहानी सुनाने के सेशन, ड्रामे और खूबसूरत मलबूसात की परेड शामिल थी। प्रिंसिपल का कहना था कि तकरीब में ग्रेड 1 के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। मेजबानी के फराइज भी उनके क्लास फेलोज के जिम्मे हैं। दिस इज बेसिकली टू डेवलप बच्चों की जो कॉन्फिडेंस है, हौसला, उनका जो हौसला है, स्टेज स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, ये सब चीज़ें डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रोग्राम्स होने ही चाहिए स्कूल्स में। टीचर्स का कहना था कि बच्चों ने बहुत मेहनत और लगन से तैयारियां की हैं, जो उनकी शानदार परफॉर्मेंस से वाज़ेह है। आज हमने एक बड़ी रेंज पे जो है फेरी टेल फेस्टिवल किया है और इसमें हमारे सारे क्लास 1 के ही बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। असातिज़ा और वालिदैन ने फेस्टिवल को सराहा। सिंड्रेला के रक्स से लेकर अलादीन के जादुई चिराग तक हर तरफ हैरत और खुशी का समा था। फेस्टिवल का इख्तिताम तलबा के पसंदीदा अखलाकी अस्बाक के तबादले पर हुआ। मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार नज़र आता है और फैसल वावडा की बात दुरुस्त नज़र आती है। तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बानी PTI की रिहाई नहीं चाहते ताकि उनकी सियासत चमकती रहे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा कि मुल्क से बाहर कुछ यूट्यूबर खुद साख्ता तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे बने बैठे हैं। मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर ही इंतशार नज़र आता है। मुझे नज़र आता है कि बहुत सारे लोग, फैसल की बात दुरुस्त भी नज़र आती है कि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना आए और उनकी लीडर और सियासत जो है वो चमकती दमकती रहे, जो इस तरह इस वक्त चल रही है। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो भी मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज कर रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को यूट्यूबर या उन्होंने अब अपने आप को एक नुमाइंदा बना लिया है, खुदकार नुमाइंदे, ये इन्होंने कोई फ़ायदा तो नहीं बचाया तहरीक इंसाफ को। इन्होंने जो खलिश को बढ़ाने में किरदार जरूर अदा किया है, कम करने में या ख़त्म करने में किरदार अदा नहीं किया। के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।